It's a very big hello to all my friends, those who are into fabulous 40s and 50s. It's basically for them who got awakened for the fitness journey maybe in last 1.5 year. Because of lockdown, they chose to work on their fitness. Yeah, but many times they get confused and they go through a lot of suffering. Suffering in a sense, how much is too much, how many kilos one should lose, and which is the right way. And sometimes, unfortunately, they get into certain coaches, certain fitness coaches, and the fitness coaches, who are mostly business minded, and they are actually expecting from their clients, that pre and post. पहली वाली जो फोटो है उनकी अभी, और उसके बाद जब वेट लॉस करेंगे तो उसके बाद की जो तस्वीर होगी उनको लगाने में बड़ा मज़ा आता है. So basically in this journey, they unfortunately they make their clients to overtrain, and they are very hard on them. Yeah, they make them starve also to a large extent. तो ये नहीं होना चाहिए. I am very lucky that I got very good trainers. They were more of fitness conscious, responsible human beings, and less of businessmen. So I'm very lucky because they told me that it should be a very long journey. You need to have a lot of patience, perseverance, and definitely passion. And I'm also here to sensitize on the same thing. Yeah, भाई कितना किलो जो है वो आपने लूज़ करना चाहिए. जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, स्पेशली 40s और 50s की बात अगर हम करें, तो अगर इफ़ इट इज़ 500 grams पर वीक, आई थिंक दैट इज़ मोर दैन इनफ. एक हफ्ते में अगर हम आधा किलो अगर लूज़ कर रहे हैं स्लोली एंड स्टडीली, तो बहुत अच्छी बात है. सी वी आर इन द वर्ल्ड ऑफ इंस्टेंट कॉफ़ी, इंस्टेंट एवरीथिंग, या इंस्टेंट मेकअप, इंस्टेंट ब्रेकअप, so and so forth. But when it comes to fitness, when it comes to losing weight especially, or gaining muscles, so it should be a very slow and graceful journey. It should not be done in a hurry-burry, just by looking at someone and then trying to compare us with them. No, it's not, because you don't know the medical history, you don't know the life history of that particular person. Many times it happens with us, those who are into 40s and 50s. हम जिम में जाते हैं एंड हम देखते हैं कि जो यंगस्टर्स हैं उनके बड़े ही जो डोले शोले होते हैं उनके बहुत बड़े होते हैं, तो हमको लगता है कि यार काश हमारे ऐसे हो. भाई ऐसा नहीं हो सकता है. एट दिस एज you need to respect the age also. I keep saying that age is just a number, but we need to understand that we should grow and evolve gracefully with the age. So I thought of certain acronym. That acronym is basically DOSE, dose. तो क्या है ये dose, देखते हैं. D stands for drugs. By drugs I mean no steroids, no gears. Absolutely be natural. Be natural. It is not only for the friends in 40s and 50s, but I would say it's for all. जो बॉडी बिल्डिंग में जाना चाहते हैं, जो स्टेज परफॉर्मेंस करना चाहते हैं, मैं उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकता, बिकॉज I heard that so most of them, almost 99.9, 100%, they go through these cycles, and they go through the PCT and all these things. I say clearly, no to drugs, no to steroids. Even when it comes to overuse of the supplement, the micronutrients, you need to know how much and when to stop. So it reminds me that DOSE, O is basically being overindulgent, be it over training or over starvation. कई बार हम इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, भूखे रह जाते हैं. ये नहीं करना है. बहुत से लोग जो होते हैं वो रात को कुछ खाते ही नहीं, वो इस हद तक वीक हो जाते हैं कि सुबह जब वो उठते हैं, राइट, तो हो सकता है उनका बीपी इतना लो हो जाए कि वो फेंट हो जाए, वो चक्कर आ जाए, गिर जाए. और भाई बाथरूम में अगर गिर जाए, खुदा ना खास्ता चोट लगे, तो इट कैन बी ए वेरी सीरियस लाइफ थ्रेट्स. अपनी जान भी गंवा सकते हैं. सो प्लीज़ डोंट ओवरडू थिंग्स. अभी हम ओवरडू करके ही हमने हमारी हालत बहुत लोगों ने बनाई है. ओवर इंटेलिजेंस मतलब बहुत ज़्यादा खा लिया, जो अनशन चीज़ें हैं, फ्राइड चीज़ें हैं, जंक फूड है, ड्रिंकिंग हो सकती है, या ड्रिंक्स या अल्कोहल की बात कर रहा हूँ मैं. सो उसकी वजह से हम वी आर सो मच ओवर वेट. तो ओवर कुछ नहीं करना. आप अगर 15-20 साल से अगर समझो आप
we are carrying that big cylinder, I mean big belly, which we all know that it's a threat to your vital organs, your heart. It creates a lot of pressure. उससे कई मसले खड़े हो जाते हैं. तो वही 15 साल से जब उसको आपने पाला है तो थोड़ा समय दीजिए आप. इट्स नॉट अ मैटर ऑफ 3 मंथ्स में आपने आपकी फ़ोटो लगा दी कि बहुत ज़्यादा ओवरवेट है, आप 85 किलोज़ है, फिर आदमी 3 महीने में लगा दी कि आप 60 किलोज़ के हो गए. नहीं, ऐसा नहीं. सुना भी 3 मंथ्स, जब 3 साल लगाओ आराम से जाओ, या फेज्ड मैनर में जाओ. फिर 3 साल के बाद में फिर क्या लॉन्ग टर्म सोचो है. 15-20 साल, 20-25 साल का सोचो आप. लेट नो फिटनेस जर्नी बिकम योर लाइफ स्टाइल एंड गो स्लो, गो ग्रेसफुल. हेल्थ चेकअप्स बहुत ज़रूरी है, मेडिकल चेकअप्स बहुत ज़रूरी है. इनफैक्ट आई डू माई मेडिकल चेकअप्स एवरी 3 मंथ्स. जैसे आपका CBC हो गया, KFT LFT हो गया, इवन टेस्टोस्टेरोन भी मैं कर लेता हूँ, नॉर्मल यूरिन टेस्ट हो गया, ये सारी चीज़ें, थायराइड हो गई, क्योंकि पता चल जाता है. आपके ब्लड प्रेशर्स आपको हमेशा मॉनिटर करने चाहिए, आपका शुगर लेवल आपको मॉनिटर करना चाहिए, एंड अकॉर्डिंगली आपका जो डाइट प्लान है उसमें जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, वे कितना ले रहे हैं, प्रोटीन कितना ले रहे हैं, वो आपको पता होना चाहिए. तो दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. और अपनी बॉडी को समझे, अपने बॉडी इंटेलिजेंस को समझे. जहाँ तक मेरा सवाल है, अगर मैं पर्सनली कहूँ तो आई वॉज नेवर आउट ऑफ फिटनेस. या पुशअप्स हो गए, स्क्वाट्स हो गए, जॉगिंग हो गई, आई वॉज ऑलवेज देयर. आप मेरे कई वीडियोज़ देख सकते हैं जो 10-15 साल से है. या आई वॉज ऑलवेज देयर. इनफैक्ट इन अर्ली डेज आई यूज्ड टू हिट जिम, बट दैट वाज आल्सो नॉट फॉर पैकिंग अप द मसल और समथिंग लाइक. इट वाज ब्लेंड अप बोथ. कार्डियो हो गया, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हुई. आई एम मोर इनटू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, बेसिकली एनर्जी. इतनी आपको एनर्जी मिलनी चाहिए कि आपके काम काज में आपको वीकनेस नहीं आनी चाहिए. यू शुड लुक गुड, आपका शेप भी सही होना चाहिए. दैट्स अनवांटेड. तो ये सारी बातें हैं. सो ओवर ट्रेनिंग नहीं करनी है. एंड फिटनेस जहाँ तक की बात अगर मैं करूँ तो हम कर क्यों हैं? द बेसिक क्वेश्चन वी शुड आस्क आवरसेल्फ, व्हाई वी आर डूइंग दिस. बेसिकली टू लिव अ वेरी healthy, happy and harmonious life with our loved ones, with our family. You can't risk your life. You are having very high stakes. There are dependents, there are loved ones. Yeah. So health is basically, if you ask me, it is devoid of any diseases and disorders. अगर हमारे कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स है, मेडिकल चैलेंजेस है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमें उसी तरह से फिटनेस रेजिम में जाना चाहिए. यू शुड नॉट ओवरडू थिंग्स. जितना बॉडी आपको अलाउ करती है, body has its intelligence, so you should start listening to body. And you will come to know. ऐसे नहीं कि भाई आपने देख लिया जिम के अंदर में भाई किसी के 6 पैक्स, और फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जो लड़कियां हैं वो 6 पैक्स देख के अगर आकर्षित होती है और आपको लगता है कि यार आपको भी 6 पैक्स बनाने हैं, और वो भी बहुत कम समय में, तो यू लुक फॉर सम कोच कि यार मुझे बनाओ, मुझे 3 महीने में ही चाहिए, आई एम रेडी टू डू एनीथिंग फॉर इट. गलत. And I really pity those, with due respect to any gender, if they are falling for just 6 packs. Physical fitness ठीक है भाई, but अगर maturity नहीं है तो क्या फ़ायदा. हाँ, I am not against 6 packs. I am also very much into it. I am in fact in the mission of 6 packs, 6 packs revolution. But उसको समय लगता है, उसको टाइम लगता है. It takes months, it takes years, not months, it takes years. जो लोग आप देखते हो जो फिटनेस मॉडलिंग करते हैं, आप उनकी लाइफ स्टोरी देखो, वो काफ़ी सालों से उसमें है. ऐसे नहीं कि जुमा आपने अब कर लिया और अब हो जाएगा, ऐसा नहीं होता. लोग यहाँ तक कि देखते कि कोई 40-50 अगर पुशअप करता है, हम उम्र का, फॉर एग्जांपल 40s-50s में अगर मैं करता हूँ, तो कई बार अगर मेरे को देख के कोई अगर बोलता है कि यार मुझे भी करना है, और आप 5 पुशअप्स की भी आपको आदत नहीं है, इट्स मैटर ऑफ हैबिट. पिछले 15-20 साल में योर लाइफ बीन वेरी सेडेंटरी, उसमें कोई मोबिलिटी नहीं है, फिजिकल एक्सरसाइजेस नहीं है, तो भाई धीरे धीरे जाओ यार धीरे जाओ. 5 करो या फिर एक बढ़ाओ, आराम से जाओ. यार किसको दिखाना है यार. सी द थिंग इज वन ऑफ द यार्ड स्टिक्स, एंड आई बिलीव इन दैट, योर फिटनेस जर्नी should not be ego driven. It should become an ego trip. Because if it hijacks your peace of mind, it hijacks your basic health, then it's being a stupid journey. ऐसा नहीं होना चाहिए. It should. So DOSE, S is basically stress busting.
तो आपकी जो फिटनेस है वो एक प्ले होना चाहिए, खेल होना चाहिए, शुड बी फन, शुड बी स्ट्रेस बस्टिंग एक्टिविटी। कई बार मैं फैमिली के साथ में सुबह शाम हम मी माई वाइफ एंड माई सन we do something new, and definitely not to show off kind of a thing, but yes, ये कुछ इसमें we keep exploring, इसमें कुछ नया हो सकता है और आराम से हो सकता है, एफर्टलेस हो सकता है। ऐसा नहीं कि और स्ट्रेन करके कुछ कर रहे हैं यार दिखाने के लिए, कुछ एक्रोबैटिक्स कर रहे हैं। ये आपने देख लिया किसी को, कोई बंदा पता नहीं कैसे कर रहा है कैलिस्थेनिक्स, ऐसे गजब तरीके से हैंड स्टैंड कर रहा है, आपको लगता है कि यार आपने भी करना चाहिए। नहीं यार, प्लीज़ अंडरस्टैंड, धीरे धीरे जाओ, प्रैक्टिस करो ना। देयर शुड बी लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड पेशेंस। हो जाएगा, जब होगा तब होगा, बट आल्सो डोंट गिव अप, यू शुड बी कंसिस्टेंट। तो वो एक है कि कई बार जो लोग होते हैं, मैं ओवर ट्रेनिंग की बात कर रहा था, तो दो एक्सट्रीम्स, अभी स्ट्रेस बस्टिंग पे आ गया, तो ओवर ट्रेनिंग की अगर मैं बात कर रहा था, ओवर तो कुछ एक एक्सट्रीम होता है, वो सोचते हैं कि 40-50 मारने का मतलब लगता है कि यार ज़िंदगी ख़त्म हो गई यार, तो वो एक्सेप्ट कर जाते हैं, ऐसे जैसे वो हथियार डाल देते हैं, एंड वो इतने बूढ़े लगने लग जाते हैं कि 60-70 साल के लगने लग जाते हैं, एंड दे बिकम वेरी वीक, तो उनके चेहरे पे भी दिखने लग जाते हैं। तो ये एक एक्सट्रीम है यार, वो खाने पीने पे ध्यान नहीं देते हैं, कोई फिजिकल फिटनेस पे ध्यान नहीं देते हैं। फिजिकल फिटनेस का मेरा मतलब ये नहीं है कि यू शुड गो एंड हिट द जिम, नहीं, जिम वो कोई भी खेल हो सकता है, कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो सकती है, इंडोर आउटडोर हो सकता है, कोई बैडमिंटन हो सकता है, टेबल टेनिस हो सकता है, भाई साइकिलिंग हो सकती है, स्विमिंग हो सकती है, रनिंग जॉगिंग हो सकती है, इवन एन इवनिंग वॉक, कुछ भी हो सकता है जिसमें आप एंजॉय करें और धीरे धीरे आप ग्रेसफुल हो, आपकी हेल्थ सेहत बने। या तो सेहत से मेरा मतलब है ई, दैट DOSE की ई है एनर्जी। सी एट द एंड ऑफ द डे यू शुड फील वेरी एनर्जेटिक। आप जब वर्कआउट करते हो तो बॉडी एग्जॉस्ट हो जाती है, ठीक है, बट एट द एंड ऑफ द डे यू शुड फील एनर्जेटिक। सुबह आप उठो तो आपको एक उत्साह होना चाहिए, यू शुड गेट अप विथ लॉट ऑफ एनर्जी। या सो यू शुड नॉट बी वेरी वीक कि आपके दूसरे ही मसले खड़े हो रहे हैं, आपका BP का इशू हो रहा है, आपके हार्ट के इश्यूज बढ़ रहे हैं, आपकी किडनी, आपने इतने ज़्यादा ओवर सप्लीमेंट्स खा लिए कि आपकी किडनी पे असर हो गया, तो ऐसा नहीं। तो यू हैव टू हाइड्रेट योर बॉडी, इनफ वाटर, ये सारी चीज़ें हैं या गूगल में आप देख लीजिए। बट गूगल में एक और चीज़ है ना कि यूट्यूबर्स जो होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, कुछ कोचेस ऐसे होते हैं कि भाई उनको देखना है आपका ट्रांसफॉर्मेशन कितनी जल्दी हो सकता है, क्योंकि उनको क्लाइंट्स बनाने। यूट्यूबर्स भी बहुत सी बातें करते हैं, बहुत बकवास करते हैं कि भाई इतने नंबर ऑफ डेज़ में स्टिपुलेट करते हैं कि भाई 21 days, 2 weeks, 3 weeks एंड यू हैव 6 packs। ऐसे थोड़ी होता है यार, इट डजंट हैपन दैट। अब वो जिस बंदे का 6 पैक बनाया हुआ है यार, वो 20-21 दिन में, तो उसका प्रेजेंट बॉडी फैट परसेंटेज कितना है, उसके बाद वो बन सकता है कि आपका बॉडी फैट परसेंटेज समझो आप 35-40 पे हैं और आप सोचते हैं कि भाई 20-21 दिन में या 3 महीने में भी आपका 6 पैक्स आ जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। उसको कम से कम 2.5-3 साल लगेंगे। तो बॉडी फैट परसेंटेज की अगर बात करूँ तो वो भी जब आपको फ़ोटोशूट करनी है या आप फिटनेस मॉडलिंग में हैं, आप सिंगल डिजिट में आके फ़ोटोशूट करना चाहते हैं, वो ठीक है 10-11, इवन आई वॉज एट 10 बॉडी फैट परसेंटेज। तो लेकिन समझदारी इसमें है कि आप जल्दी से 20-25 बॉडी फैट परसेंटेज में, मतलब जल्दी से इन सेंस 20-25 बॉडी फैट परसेंटेज जो है वो हेल्दी है, मैं मेन की अगर बात करूँ। बिकॉज अगर आप सिंगल डिजिट बॉडी फैट परसेंटेज की बात करेंगे तो उतने में तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल ही मेंटेन नहीं हो पाएगा, हेल्थ के काफ़ी मसले खड़े होंगे, बहुत से इश्यूज होंगे, एंड योर हेल्थ विल डिटोरेट, यू फील सो वीक, सो सिक। तो नहीं, वो आई डोंट नो एनकरेज दैट, या आई डोंट एनकरेज दैट। अगर आपका फिटनेस गोल कुछ और है, आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, या तो उसमें भी ऑन सीज़न होता है, ऑफ सीज़न होता है, सो यू शुड टेक हेल्प ऑफ सम जेन्युइन कोच, जेन्युइन एक्सपर्ट, न्यूट्रिशनिस्ट। ये सब जो आपको डाइट प्लान बना के देते हैं, क्लीन डाइट है, ये सारी चीज़ें हैं, तो ये सब का ध्यान रखना है। रोज़ लो, टू बी फिजिकली फिट इज़ फाइन, टू बी मेंटली फिट इज़ सुपर फाइन, एंड टू बी स्पिरिचुअली फिट इज़ डिवाइन। डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू वेरी मच।